Hello children, this video is about the topic Money and Banking of Macroeconomics book, class 12th by Ms. Divya Saraswat, and in this video we will learn about the concept of money. Let us see what are our learning objectives. So after watching this video, you will be able to describe barter system, explain concept of money, describe functions of money, and elaborate money supply. These are the 4 topics we have to cover with the help of this video. So before we don't have money, how people are exchanging the things or how they are dealing with their day-to-day activities. So exchange of surplus between parties could be referred to as barter system in simple words. Now barter system can be taken place in 3 forms. When people exchange goods to goods or goods to services or services to services. Mean to say goods के exchange में goods वो लेते थे and suppose एक person ने दूसरे person को goods provide कर दिया and that person in return उसको एक service provide कर रहा है and like the same way services to services. But what are the limitations of barter system that people faced at that time? Lack of double coincidence of wants. For example, with the help of this video, you can easily understand that this lady want to exchange this banana with apple. Okay, but this person want to exchange this apple with rice. It means there is lack of double coincidence of want. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था कि जो चीज़ हमें चाहिए वही सामने वाले के एक्सचेंज में उसको रिक्वायरमेंट है या नहीं है. दोनों को एक दूसरे के गुड्स की रिक्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी होता था. अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट टू एक्सचेंज द गुड्स और सर्विसेज एज वेल. सो देयर इज lack of double coincidence of wants. Now lack of store of value. With the help of this example, you can see that these 2 persons are exchanging the goods. But if we are talking about the apples, you cannot store the apples to very long time. After a time, apple को आपको या तो consume करना पड़ेगा या फिर वो खराब हो जाएंगे. So there is no store value. बहुत सारे goods ऐसे होते हैं जो store value के नहीं होते हैं. You can store the animals, but you cannot store the food materials. So now next is lack of common measure of value. It means if somebody want to exchange its car with a pen, you cannot exchange that because there is measure value. उनकी common measure value नहीं है. आप एक पेन अगर आप यूज भी करते हैं तो मैक्स टू मैक्स 100 रुपीज, whereas कार का प्राइस लैक्स में होता है. So there was lack of common measure of value in barter system. And last one is lack of standard of deferred payments. Deferred payments means जो payments आप फ्यूचर में करते हो. फाइन, कुछ पार्ट आपने अभी पे कर दिया, कुछ पार्ट आपने फ्यूचर में पे कर दिया, लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 1 sack of wheat एक्सचेंज कर रहा है विथ अ हॉर्स, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो बोलेगा अभी हॉर्स का एक पार्ट आप अभी ले जाइए, एक पार्ट आप बाद में 1 महीने बाद ले जाइएगा. नो, सो इट्स नॉट पॉसिबल इन द बार्टर सिस्टम दैट लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स. नाउ देन द सॉल्यूशन टेकन बाय द पीपल टू ओवरकम द लैप्सेस दे फेस्ड इन बार्टर सिस्टम इज मनी. ठीक है, मनी इज any item that is generally acceptable in exchange for goods and services. Okay, it's a medium of exchange, a measure value and a store value. अगर आप ध्यान से समझोगे जो limitations थी barter system की, उन्हीं को कवर करने के लिए मनी को derive किया गया. Okay, difficulty of double coincidence of want, उसके लिए आ गया a medium of exchange. Lack of common unit of value, a measure of value. Okay, store value is also a money. Okay, अगर आपको deferred payment की भी दिक्कत है तो money having a measure of value you can easily use as a deferred payment. Okay, so now what are the functions of money? Functions of money are classified into 2 categories. One is your
primary and another one is your secondary. So in this, with the help of this figure, you can see here medium of exchange and store value are primary function, and measure of value and standard of deferred payment, these are secondary function of money. Now, medium of exchange. Use of money as a medium of exchange has removed the major difficulty of double coincidence of wants in the barter system. Basically, उस limitation को overcome करने के लिए money is used as a medium of exchange. Next is your store value. You can easily store your money if you want to store. You can have FDs, you can have saving at your home. So you can easily store your money. It doesn't like कि आपको इसको अभी कंज्यूम करना है वरना ये खराब हो जाएगा या इसकी एक्सपायरी डेट आ जाएगी. Next is your measure of value. You can easily measure the thing in the terms of money. Okay, everything has a monetary value. Next is your standard of deferred payment. Standard of deferred payments refers to those payments which are made sometime in the future. Okay, जैसे कि loans होता है, it is a kind of a deferred payment. So you can easily pay loan in terms of money. अभी थोड़ा दिया, then installment next month दी, then next month, like this. But in barter system, it was not applicable at that time. So these are the functions of money. Now, the next one is money supply. This is a very important topic in under the money topic. So it refers to total stock of money held by the people of the country at a particular point of time. एक कंट्री के अंदर जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, उसके पास कितना मनी है, that is the money supply. Now, since government and banks are the producers of money, ठीक है, उनके थ्रू ही हमारा मनी जो है, वो करेंसी जो है हमारी, वो प्रिंट होती है. So they are the suppliers of money. So the stock of money held by them is not included in money supply. जो पैसा उनके पास होता है, that will not include in money supply. अब जरा इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छी तरीके से समझते हैं. For example, in a commodity there are banks and there are peoples. Okay, पीपल्स में अगर मैं हम लोगों का एग्जाम्पल लें, तो हमारे पास मनी होता है, हमारे पॉकेट में होता है, हमारे वॉलेट में होता है, या फिर हम लोगों ने घर में कहीं रखा होता है. दैट मनी इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई. ना, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैक्सिमम लोग इवन ऐसे होते हैं जो अपना मनी बैंक के पास भी रखते हैं. सो एट दैट केस बैंक के पास जो अकाउंट्स होते हैं, दैट आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, जो अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, जो हम बैंकिंग में पूरा कवर करेंगे. करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट. करेंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो मोस्टली बिजनेसमैन के पास होता है. दे कैन डू द ट्रांजैक्शन ऑफ बिग अमाउंट्स, लार्ज अमाउंट्स के वो ट्रांजैक्शंस करते हैं. वो कभी भी उनको डिपॉजिट करते हैं, कभी भी उनको विड्रॉल कर लेते हैं. इसके ऊपर बैंक का कोई रेगुलेशन नहीं होता. बैंक उसके लिए कोई भी उनको रिटर्न में परमिशन के लिए नहीं बोलती है. ओके, सो इन करेंट अकाउंट में जो भी पैसा आता है, उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट बैंक के थ्रू प्रोवाइड नहीं किया जाता. नेक्स्ट इज योर सेविंग्स अकाउंट. सेविंग अकाउंट में एक लिमिट होती है कि आप इतना अमाउंट एक मंथ के अंदर सबमिट कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, या फिर अगर आप 50,000 एंड अबव डिपॉजिट कर रहे हो तो आपका पैन कार्ड का भी इशू होता है कि दैट यू हैव टू प्रोवाइड द पैन कार्ड. ठीक है, और सेविंग अकाउंट में कुछ इंटरेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है थ्रू द बैंक. नेक्स्ट इज योर फिक्स्ड डिपॉजिट. फिक्स्ड डिपॉजिट वो अकाउंट होता है जिसके अंदर आप एक फिक्स टाइम के लिए अमाउंट को रखते हो, वेयर सेविंग अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं होता है. यू कैन विदड्रॉ द मनी, बट फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है कि आप इतने टाइम के बाद ही अपना मनी को विदड्रॉ करोगे एंड दे विल प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन दैट. नाउ इन मनी सप्लाई के अंदर जो कॉन्सेप्ट आपका ऐड होता है, वो पैसा ऐड होगा जो कि आपका करेंट अकाउंट में है. मनी सप्लाई में सेविंग और फिक्स डिपॉजिट के मनी को इंक्लूड नहीं किया जाता है. ठीक है, करेंटली अगर मैं बोलूं कितना हमारी कमोडिटी के अंदर पैसा घूम रहा है, दैट इंक्लूडेड इन करेंट अकाउंट. ठीक है, सेविंग एंड फिक्स डिपॉजिट को टच नहीं करते हैं. वो सेविंग्स और फिक्स डिपॉजिट का पैसा मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं होता है. नाउ मूव टू नेक्स्ट.
प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, किस किस को मिलाकर मनी सप्लाई बनता है, जो हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट है, बेस है मनी सप्लाई का. फर्स्ट इज योर करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जितना पैसा लोगों के पास मौजूद होता है, ठीक है, दैट इज योर करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक. सेकेंड इज डिमांड डिपॉजिट. व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट? द डिपॉजिट विच इज इन करेंट अकाउंट, उसे हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं. ऑफ पीपल विथ कमर्शियल बैंक्स. ओके, कमर्शियल बैंक्स इज अदर देन आरबीआई. नेक्स्ट इज योर अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई. अब आरबीआई में नॉर्मल पर्सन तो डिपॉजिट कर नहीं सकता है, बिकॉज आरबीआई इज बैंकर्स बैंक, ठीक है, फादर ऑफ ऑल बैंक्स. तो आरबीआई में जितने भी आपके आईएमएफ है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपना जो डिपॉजिट्स करते हैं उसको भी इंक्लूड किया जाता है इन मनी सप्लाई. ओके, तो करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जितना लोगों के पास पैसा है, जितना पैसा आपका करेंट अकाउंट में है, एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई आर द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई. मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई कैसे करते हैं? मनी सप्लाई को ना 4 तरीकों से क्लासिफाइड कर दिया है, जिसमें द फर्स्ट वन जो हम पढ़ चुके हैं, दिस इज द इम्पोर्टेंट वन. अनदर वन आपको सिर्फ लर्न करना है. इवन दिस टॉपिक इज ऑफ रिमेम्बरिंग टॉपिक, आपको लर्न करना है इसको अच्छे से. करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई. नाउ M2 इज योर M1, जितना M1 में आया है, प्लस जो भी आपकी सेविंग पोस्ट ऑफिस की होती है उसे भी इंक्लूड कर लिया जाता है. पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग्स होती है लोगों की, उसको भी इंक्लूड किया जाता है. M3 इज योर M1, जितना M1 है, प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक. जो भी टाइम डिपॉजिट यानी कि फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं बैंक के अंदर, दैट विल इंक्लूड इन दैट. फिक्स डिपॉजिट को हम M3 में इंक्लूड करते हैं. नाउ फोर्थ वन इज योर M3 यानी कि M1 और फिक्स डिपॉजिट प्लस ऑल द पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स. जो भी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं इनको एक्सक्लूड करके जितना भी पोस्ट ऑफिस का डिपॉजिट होता है, ठीक है, दैट इज योर M4. वन मोर थिंग, जो आपका M1 होता है, द M1 इज कॉल्ड नैरो मनी, M1 is called narrow money and M3 is called broad money. M1 is called narrow money, M3 is called broad money. Suppose अगर एक नंबर के 1 marks क्वेश्चन में आ गया, the difference between the broad money and narrow money is fixed deposits, ठीक है, या time deposit with banks. So this is your concept of money, in which the money supply is the important topic. Functions of money supply, functions of money are not so much important, but money supply आपका present है syllabus में, functions of money नहीं है, but though we have to cover that also because 1 marks का question उससे आ सकता है. So thank you very much for watching this.